Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, yesterday we started this topic, Pakistan-US relationship, since 1947 to date, and in which we discussed Pakistan-US relationship, why after 1947 United States of America chose Pakistan as ally, and why Pakistan chose United States of America as an ally. We had security and economic considerations. We were newly born state, and we needed a strong cushion. So that was the reason that Pakistan, joined the U.S. camp. And United States of America, obviously, they needed, a country in South Asia which has closer proximity with the Central Asian. At that time, it was part of Soviet Union. So they needed Pakistan to, spy on the Soviet territories and to look into the missile sites and all that. In the first era, we talked about, that both countries focused on containment of the Soviet Union, and for that, Pakistan also received security and economic assistance by the U.S., and that proved to be really productive at that, during that period. But at the same time, we also had some divergences over the issue of U-2, which was a spy plane of the United States of America. It was shot down by the Soviet Union, and which created serious diplomatic embarrassment for Pakistan. And then we had arm embargoes by the United States of America, जिसको हमने discuss किया था detail में. And of course, nuclear-related sanctions seriously disrupted Pakistan-US ties in the first era. In the second era, started with the invasion of Soviet Union on Afghanistan, and in which, in reply, the United States of America, they carried out Operation Cyclone, which was anti-Soviet effort in which many countries like NATO powers, 49 states, Muslim countries, and some of the African countries, plus China and Japan and other states, they collectively fought against the Soviet Union in Afghanistan, and Pakistan was the frontline state, which definitely was on the border. So anything happened in Afghanistan, it had serious implications for Pakistan as well. So ultimately, we discussed it in detail, and by 92, the Soviets were kicked out from Afghanistan. And after 92, there was power vacuum. Soviet Union left Afghanistan, and the Americans, they left Afghanistan, and Afghanistan was on its own, which resulted in civil war among all groups who were fighting against the Soviet Union. अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर भी sanctions लग गई. United States of America imposed sanctions on Pakistan, and Afghanistan, was in total chaos at that time. So after 92, we discussed the Taliban emerged in Afghanistan, and Al-Qaeda also came to Afghanistan in 98, and then Al-Qaeda planned 9/11 in Afghanistan in 1999, and Khalid Sheikh Mohammed, who was the mastermind of Al-Qaeda, he actually planned 9/11, and he brought about 19 terrorists, जिनमें से 15 जो थे, they were from Saudi Arabia, and 4 were from Egypt, Saudi, UAE, and Jordan. So these 19 terrorists, they entered United States of America, and Khalid Sheikh Mohammed, he planned everything, and he was responsible for their ticketing, their boarding and lodging in the United States of America, and they lived in America for 2 years. They got training of how to fly planes, and ultimately they hijacked 4 airliners from different airports, and ultimately 2 जो हैं वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे गिरे, एक पेंटागन जो उनकी GHQ है जिस तरह हमारा है, और एक जो था it was planned on White House या फिर Capitol Hill according to different analysis, और लेकिन वो आपस की हाथापाई की वजह से पायलट्स के साथ वो क्रैश हो गया about 183 kilometers away from Washington DC. तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था मेरा ख्याल है ना? जी सर. यहाँ से डिस्कस कर लिया, ठीक है. So in the post 9/11 situation, the world changed,
and the world changed altogether, and the foreign policy of Pakistan also changed, as well. United States of America, when it was attacked, our DGISI at that time, Mahmoud Durrani, he was in America. He was on the official visit to America. And soon after the attack, the Americans came to know, they suspected that it was Al Qaeda, because only Al Qaeda had the capability at that time to carry out transnational attacks against American assets. So as I told you before, that previously Al Qaeda had already attacked American assets around the globe, यमन के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, और तंजानिया, कीनिया के अंदर उनकी जो वहाँ पे embassies थी, they were attacked. So and 93 में basement of Al Qaeda, basement of World Trade Center was attacked by Al Qaeda already. तो it was obvious कि जब वो अटैक हुआ, दूसरा प्लेन जब आके टकराया, तो दैट वाज नॉट एक्सीडेंट, और सीआईए ने फौरन उसको कंक्लूड किया कि इट इज अल कायदा, और ये अल कायदा ने जो है ये कार्रवाई की है. सो soon after that, Americans, they decided that they are going to take strict action against it, because America is a superpower. That at that time it was a superpower. तो obviously उन्होंने पाकिस्तान को कुछ सेट ऑफ डिमांड्स दी, और वो सेट ऑफ डिमांड जो थी वो लेकर हमारे जो DGISI थे, ही केम टू पाकिस्तान. और वो सेट ऑफ डिमांड्स क्या थी? यू हैव टू कट ties with the Taliban, you have to provide intelligence input, you have to provide us logistic और लाइन वगैरह अगर हम अटैक करते हैं, you have to provide us air bases, और इसके अलावा joint intelligence and everything. अच्छा, ये सारी जो थी these set of demands were given to Pakistan, और इसके ऊपर अमेरिका ने कहा कि they are non-negotiable, and there will be no negotiation on it. अच्छा, तो यहाँ से कहानी शुरू हुई, और अमेरिकन्स इनिशियली दे डिमांडेड तालिबान टू हैंड ओवर ओसामा बिन लादेन to America, but Mullah Omar, he denied, and he said no, he's our guest and you have to provide evidence of it. अच्छा, एविडेंस निकालना में थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों पे, लेकिन इट वाज नोन फैक्ट कि अलकायदा ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनके ऊपर अटैक कर सकती है. तो अमेरिका ने उसके ऊपर इंसिस्ट किया, पाकिस्तान ने भी काफी ज्यादा कोशिश की. पाकिस्तान आल्सो ट्राइड, पाकिस्तान सेंट इट्स ISI चीफ, ये मौलाना समीउल हक साहब जो थे, ये इनको भेजा गया, बहुत सारे उलमास को भेजा गया टू कन्विंस तालिबान, टू रीजन विद देम, और लॉजिकली उनको समझाएं कि जी अमेरिका इज गोइंग टू अटैक अफगानिस्तान एट एनी कॉस्ट, तो अगर आपने ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर ना किया. But Mullah Omar, he had his own, opinion, and he said that we are not going to give Osama bin Laden to America. And ultimately, पाकिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात काफी खराब हो गए, और यहाँ तक बात हुई कि मुल्ला उमर ने आखिर में मुशर्रफ को कहा कि if you don't agree with my policies, बॉम्ब कंधार, यानी कि कंधार पे बम फेंक दो, आप न्यूक्लियर बम फेंक दो बस. तो एक टॉन्ट सा उसने किया उसको, और मुशर्रफ जो था ही देन टुक यू टर्न, और उसने कहा ठीक है, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे तो फिर हम भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, और मुशर्रफ ने यू टर्न लिया. नाउ दिस वाज यू कैन से मेजर यू टर्न इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और वो लेना ही बनता था आपका, उसके बगैर आपका न्यूट्रलिटी वाज नॉट द ऑप्शन, क्योंकि इंडिया वाज आल्सो देयर, और वो भी बैठा हुआ था. अगर आप इनकार करते हैं, अमेरिका को बेसिस नहीं देते और हेल्प नहीं करते, तो अमेरिका ने तो फिर भी आपके ऊपर से गुजर के जाना है, और आपकी जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन होनी थी. सो वी हैड टू एक्सेप्ट इट, और हमने अमेरिका का साथ देने पे राजी हो गए. और उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पाकिस्तान ने की, वो थी इनिशियल पीरियड में कि पाकिस्तान ने टुक सीरियस एक्शंस, और उसने अलकायदा के जो ज्यादातर जो बंदे थे, टॉप की लीडरशिप, उनको पाकिस्तान में पकड़ा और उनको मारा. ये जो एफर्ट थी पाकिस्तान की, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट थी, और इसके अंदर आपने अलकायदा के जो जितने भी टॉप की लीडरशिप थी, इंक्लूडिंग खालिद शेख मोहम्मद, हु वाज द एक्चुअली 9/11 प्लानर, उसको 2003 में पाकिस्तान ने पकड़ा रावलपिंडी में. और ये जो बाकी लीडरशिप थी, अबू जुबैदा वगैरह, ये फैसलाबाद से पकड़े गए, रमजी बिन अशरफ वगैरह को कराची से पकड़ा, अबू फराज अल लीबी वाज कैप्चर्ड इन मर्दान. So basically, the whole leadership was almost, it was nabbed in Pakistan, और बहुत सारों को हमने मार भी दिया, और बहुत सारों को हमने अमेरिका को हैंड ओवर भी किया, जिसमें से खालिद शेख मोहम्मद वाज द की.
तो दिस वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी सपोर्ट which Pakistan provided to the United States of America. हाँ, लेकिन जहां तक तालिबान की बात थी, पाकिस्तान never ever took serious steps against तालिबान because तालिबान को आपने कार्ड के तौर पे छुपा के रखा अपने पास. So you can use them when it is required. तो अगर आप आज देखें 2021 में, तो आपको पाकिस्तान की ये जो उस वक्त की पॉलिसी थी वो आपको सही लगेगी. So this was the first step which Pakistan took after 9/11, and in which Pakistan carried out serious efforts, intelligence operations, and most of these operations were joint intelligence operations with CIA, जिसकी मदद से इन्होंने बहुत सारे जो अलकायदा के लीडर्स थे उनको पकड़ा और मारा. दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो मैंने शायद आपको पहले भी बताई थी, वो थी लॉजिस्टिकल सपोर्ट. No military operation in the world can sustain without uninterrupted supplies of logistics. तो पाकिस्तान was located in on such a position कि आपकी जो लोकेशन थी उस पाकिस्तान के अलावा कोई भी मुल्क जो था वो अमेरिका को उस तरह की लॉजिस्टिक लाइन प्रोवाइड नहीं कर सकता था. So we were located in a very peculiar position on the mouth of Arabian Sea. हमारी जो पोर्ट थी वहां से वो इनका जितना भी सामान था, लॉजिस्टिक थी, ऑयल था, वेपन्स थे, स्मॉल आर्म्स थे, वो लेकर चमन के रास्ते और तोरहम के रास्ते, ये दो रूट्स थे जहां से इनके डेली बेस पे 300 ट्रक दे यूज्ड टू पास थ्रू पाकिस्तान. और 300 ट्रक का मतलब है 9000 ट्रक पर मंथ यूज्ड टू पास थ्रू पाकिस्तान एंड दे यूज्ड टू एंटर अफगानिस्तान. So this was very crucial support which Pakistan provided to the United States of America, and 80% of their supplies initially वो बहुत अरसे तक वो हमारे यहाँ से गुजर के जाती थी. तो इसकी वजह से अमेरिका ने अपने ऑपरेशंस को जो सस्टेन किया वहां पे और बड़े जबरदस्त ऑपरेशंस किए इनिशियली. एंड इन द इनिशियल पीरियड उन्होंने 2001-2 में तालिबान का बिल्कुल सफाया कर दिया. बिल्कुल पहले महीने के अंदर ही तालिबान को वहां से वाइप आउट कर दिया उन्होंने. अच्छा, आफ्टर 9/11 जो दूसरी ये तो लॉजिस्टिक सपोर्ट होगी. दूसरे हुआ ये उसके बाद सून आफ्टर ऑपरेशन इन अफगानिस्तान, तो वहां से जब अमेरिका ने पुश किया मिलिटेंट्स को, एंड अलकायदा थी उसमें, उज़्बेक मिलिटेंट्स थे जिनको IMU कहते हैं आप, और ETIM थे चाइनीज मिलिटेंट्स जो हैं, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वो मिलिटेंट्स, उन सबको अफगानिस्तान से पुश किया. तो ऑटोमेटिकली हमारा जो 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है फाटा का, वो वहां से सीधा दे एंटर्ड पाकिस्तान और यहाँ आके दे गॉट शेल्टर. और पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज थे, फाटा थे, वहां पे जो हमारे लोग थे, लोकल ट्राइब्स थे, उन्होंने इनको शेल्टर दे दिया, अलकायदा को और बाकी मिलिटेंट्स को. इन रिटर्न उन्होंने 2-3 चीजें कही जाती हैं कि क्यों दिया उन्होंने शेल्टर. पहली चीज पश्तून बली, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट है पश्तून सोसाइटी का, कि जी आपका दोस्त, अगर आपका मेहमान आपके पास आ जाए, इसको मिलमस्ता भी कहते हैं पश्तून में, अगर आपका मेहमान आपके घर आ जाए तो उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं और उसको दुश्मन के हवाले नहीं करते. तो एक तो ये रीजन कही जाती है. दूसरी रीजन थी इस्लाम, कि जी ये लोग जो थे ये इस्लाम की खातिर जंग लड़ रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने इनको शेल्टर दिया, जो हमारे ट्राइब्स थे उन्होंने, नेक मोहम्मद वगैरह ने. और तीसरी रीजन थी रियाल, पैसे. अब ये जो जितने भी अलकायदा थी, ये दे हैड ह्यूज फंड्स, उनके पास बड़ा पैसा था. तो अब सिचुएशन ये बनी कि इन तीनों में से जो मेरी असेसमेंट है वो यही है, ना पश्तून वली थी, ना इस्लाम था. इट वाज ऑल मनी विच दे नीडेड. और उन्होंने वहां पे आकर जमीनें खरीदी, कुछ ने शादियां भी की यहाँ पे, एंड दे गॉट सेटल्ड हियर. तो पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट था इस सारी वॉर ऑन टेरर के अंदर, आपने देखा. अच्छा, इसके बाद हुआ ये कि वॉर जो थी इट केम टू पाकिस्तान, and America in 2002 pressurized Pakistan to take action against these groups, और अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन करें आप फाटा के अंदर और बाकी एरियाज के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान से दे केम टू ट्राइबल एरियाज ऑफ पाकिस्तान. तो उसके अंदर पाकिस्तान स्टार्टेड मिलिट्री ऑपरेशन. तो पहला मिलिट्री ऑपरेशन जो था दैट वाज ऑपरेशन अल-मिज़ान, which lasted for about I think 4 years, 2002 से लेकर 2006 तक. अच्छा, और उसके बाद फिर दूसरे जो छोटे मोटे मिलिट्री ऑपरेशंस स्वात में, और फिर 2008 के पहले के जो ऑपरेशंस थे, खैबर एजेंसी में हुआ, सिराते मुस्तकीम, ऑपरेशन शेर दिल हुआ, यहाँ पे आपका
क्या कहते हैं उसे, बाजौड़ एजेंसी में। अच्छा, ये जो शुरू के ऑपरेशन थे सारे, दे वर नॉट यू कैन से होलिस्टिक या फिर comprehensive operations. They were very you can say they were not far sighted actually. बड़े शॉर्ट से और बड़े लिमिटेड से टैक्टिकल से ऑपरेशंस थे ये, जिसमें होता यह था कि आप एक जगह पे ऑपरेशन करते थे तो मिलिटेंट दूसरी जगह जाके छुप जाते थे, और जब आप मूव करते थे वापस तो वापस निकल आते थे, जिसकी वजह से हुआ ये कि फाटा के हालात और ज्यादा खराब होने शुरू हो गए, और एंटी पाकिस्तान और एंटी फौज जो है वो एलिमेंट्स वहां पे बनने लगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो थी, इट वाज नॉट डिजाइन टू फाइट सच काइंड ऑफ वॉरफेयर। ये टैंक्स लेकर, ये तो इंडिया के खिलाफ इनकी ट्रेनिंग है ना सारी, लेकिन जब ये टेररिज्म की जंग शुरू हुई, गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हुई, तो ये टैंक्स लेकर और ये जहाज लेकर और हेलीकॉप्टर्स लेकर इन्होंने फाटा में ऑपरेशंस किए शुरू में, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे लॉसेस हुए, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग इनके पास नहीं थी। तो उसके अंदर लोग भी बहुत सारे मरे, और एंटी पाकिस्तान और एंटी अमेरिकनिज्म और एंटी आर्मी की जो सेंटीमेंट्स है वो लोगों के अंदर बढ़ने लग गए बहुत ज्यादा। अच्छा, तो इस चीज को मिटिगेट करने के लिए, फिर इन लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए, क्योंकि हमारे भी बड़े लॉसेस हुए, पाकिस्तान फौज के भी बड़े लॉसेस हुए इन द इनिशियल पीरियड, पाकिस्तानी फौज के तकरीबन 2,500-3,000 लोग मारे गए, और दूसरी तरफ से जो सिविलियंस की डेथ्स थी वो भी बहुत ज्यादा थी। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान ने क्या किया कि 2004 से लेकर 2008 तक कुछ पीस एफर्ट्स भी की, ताकि बातचीत के जरिए से मसले को हल किया जा सके। तो मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ पीस एफर्ट्स भी चलती रही, जैसे कि फॉर एग्जांपल द फर्स्ट पीस एग्रीमेंट वाज कैरिड आउट विद नेक मोहम्मद इन साउथ वजीरिस्तान एजेंसी। नाउ नेक मोहम्मद वाज द ट्राइबल यू कैन से चीफ था, कह लो आप, जो कि इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था अलकायदा वगैरह को। तो इसके साथ जब अग्रीमेंट हुआ तो इसको अगले दिन ही अमेरिका ने कुछ ड्रोन स्ट्राइक के अंदर मार दिया, क्योंकि अमेरिकन को ये था कि ये लोग इसके ऊपर फॉलो नहीं करेंगे और ये फिर भी अलकायदा को शेल्टर दे के रखेंगे। नेक मोहम्मद के मरने के बाद बैतुल्लाह मसूद टुक ओवर, और उस वक्त तक टीटीपी नहीं बनी थी, तहरीक तालिबान वाज नॉट फॉर्म्ड। तो बैतुल्लाह मसूद जो था, ही वाज एल्डर ऑफ ट्राइब, मसूद ट्राइब का, ही टुक ओवर, और उसके बाद फाइटिंग दोबारा शुरू हो गई। इसके अंदर दोबारा जब लॉसेस हुए तो दोबारा हमने एग्रीमेंट किया इनके साथ, सराटोगा एग्रीमेंट टुक प्लेस इन 2005। इसके अंदर वी ट्राई टू प्रेशराइज दीज these tribes to please kick out Al-Qaeda and other militants like IMU and ETIM militants from this region, from FATA, क्योंकि हमारे ऊपर बाहर से बहुत बड़ा प्रेशर था। तीसरा जो एग्रीमेंट था दैट वाज विद एक दत्ता खेल के अंदर एक ग्रुप था, उसके साथ हुआ नॉर्थ वजीरिस्तान में, और मीरन शाह के अंदर ये एग्रीमेंट पेश आया, जिसका नाम था मीरन शाह एग्रीमेंट। हाफिज गुल बहादुर के साथ हुआ ये, क्योंकि वो भी एक गैंग अपना लेके बैठा हुआ था, एंड ही हैड आल्सो फॉलोअर्स ऑफ अबाउट 10,000, लेकिन वो फोकस था अफगानिस्तान के ऊपर, अमेरिका के खिलाफ। ही वाज नॉट फोकस अगेंस्ट पाकिस्तान। तो उसने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया कि जी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, तो उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। और एक और एग्रीमेंट आपने किया बाजौड़ के अंदर, मौलवी फकीर था कोई उसके साथ। ये सारे एग्रीमेंट फेल हो गए, क्योंकि इन्होंने कभी भी इन एग्रीमेंट्स को फॉलो नहीं किया। इस एग्रीमेंट की सबसे पहली शिक ये थी कि आप फॉरेन एलिमेंट्स जो हैं, अलकायदा है या आईएमयू है या ईटीआईएम है, यू विल नॉट गिव देम रेफ्यूज, जिसको इन्होंने कभी माना नहीं, एंड अल्टीमेटली दीज एग्रीमेंट्स फेल्ड। और फिर इन फाइटिंग दोबारा वो जो वॉर थी वो शुरू हो गई, फौज के साथ इनकी लड़ाई शुरू हो गई, और ये चलता रहा सिलसिला। अल्टीमेटली इन 2007 टीटीपी वाज फॉर्म्ड, और टीटीपी जब वहां पे फॉर्म हो गई, और बैतुल्ला मसूद वाज देयर चीफ, अमीर था पहला इनका, और टीटीपी के अंदर थे तकरीबन 40 के ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप्स थे हु मर्ज टुगेदर, और उन्होंने इसका नाम दिया टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान फौज ट्राइबल एरिया से निकल जाए, और यहाँ पे जो शरीयत है उसको नाफिज किया जाए ट्राइबल एरिया के अंदर, और अमीरात ऑफ वजीरिस्तान का नाम इसको उन्होंने देना शुरू कर दिया, और यहाँ का जो कंट्रोल है वो लोकल के पास हो। अच्छा, तो ये सारी बातें आपकी मुल्क के लिए तो उनके लिए तो बिल्कुल भी ये क्या कहते हैं उसे, वो उस पर राजी नहीं हुए।
और उसके बाद की जो 2007 के बाद की जो सिचुएशन है सिक्योरिटी की, आपको पता है कि पाकिस्तान सॉ मैनी हाई प्रोफाइल अटैक्स, मैरियट बॉम्बिंग हुई 2008 में, उसके बाद फिर आपके बाकी एरियाज जीएचक्यू पे अटैक, और बाकी जितनी भी पाकिस्तान की मिलिट्री सिविल इंस्टॉलेशंस थी मेन, उनके ऊपर भी अटैक शुरू हुए। अच्छा, ये जो फर्स्ट ईरा था 9/11 के बाद, इसके अंदर एक और चीज हुई और दैट वाज ड्रोन स्ट्राइक। First time, first time ever, United States of America introduced drone strikes in this region. और ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स थी ये इन्होंने शुरू की, तकरीबन कहते हैं कि 51 ड्रोन स्ट्राइक्स टुक प्लेस ड्यूरिंग मुशर्रफ regime. ये कम क्यों थी? और ओबामा के दौर में मोर देन 290 ड्रोन स्ट्राइक्स टुक प्लेस, और उसके बाद फिर ये नीचे आती गई। उसका क्यों आती गई मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। मुशर्रफ के दौर में देयर वर 51 ड्रोन स्ट्राइक्स। ये जो जितनी भी 51 ड्रोन स्ट्राइक्स थी, देयर वर लिमिटेड, दे वर टारगेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड थी ज्यादातर। मुशर्रफ ही मतलब हमारी जो एजेंसीज थी, दे यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके जरिए से ये लोग स्ट्राइक्स करते थे अलकायदा के ऊपर, या जो टीटीपी से रेलेवेंट जो ग्रुप्स थे जो पाकिस्तान के खिलाफ थे उनके ऊपर, या फिर बाकी एलिमेंट्स पे। तो लेकिन ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स थी दे वर काउंटर प्रोडक्टिव। वो काउंटर प्रोडक्टिव इस वजह से थी क्योंकि इसमें ज्यादातर जो थे वो सिविलियंस जो थे उनकी हलाकत होती थी। और ये ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मिलिटेंट जो है वो अकेला तो नहीं रहता, वो एक नेबरहुड में रहता है, लाजमी बात है, वो फैमिलीज के साथ रहते हैं। और लाजमी बात है कि उसको जब आप टारगेट करेंगे, और हेलफायर मिसाइल जो अमेरिका उस पर लॉन्च करता था इनके ऊपर, तो कभी कभी ये भी होता था कि 2-2 3-3 वो लॉन्च करते थे ताकि जो सस्पेक्ट है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए। तो इस तरह की जो ड्रोन स्ट्राइक्स होती थी उनके अंदर ऑब्वियसली जो सिविलियन जो लॉसेस थे दैट वुड हैव बीन ग्रेट। अच्छा, बाद में जो ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई ओबामा के दौर में भी, और ओवरऑल तकरीबन कोई 400 के करीब ड्रोन स्ट्राइक्स हुई। एंड अकॉर्डिंग टू 3 थिंक टैंक्स, रिप्रीव ऑर्गेनाइजेशन, न्यू अमेरिका फाउंडेशन एंड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये 3 थिंक टैंक्स थे। They formulated a report in which they said that 400 drone strikes took place in Pakistan, in which more than 4,000 civilians they died. इन 4,000 में से सिर्फ जो मिलिटेंट जो थे they were only 82, और मिलिटेंट में वो भी हाई प्रोफाइल मिलिटेंट जो थे, जो कमांडर्स थे टॉप के, अलकायदा के थे या तालिबान के थे या हकानी के थे या जिसके भी थे, they were 82 और 84। बाकी जितने भी थे रिमेनिंग they were innocent civilians। और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो रेडिकलाइजेशन है, एक्सट्रीमिज्म है, दैट इंक्रीज्ड, क्योंकि जिसकी फैमिली मर गई पूरी, वो या बाप मर गया या भाई मर गया, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू टेक रिवेंज, और वो इजी टारगेट हो जाता है इसके लिए, मिलिटेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। FATA, the most dangerous place, was a book written by शुजा नवाज, एंड अटलांटिक काउंसिल में साउथ एशिया का डायरेक्टर है ये बंदा। इसने किताब लिखी फाटा द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन 2009। उसके अंदर वो लिखता है कि उसने उसामा, ये जो बैतुल्लाह मसूद है, उसका इंटरव्यू उसमें पब्लिश किया, और उसमें वो कहता है कि जी बैतुल्लाह मसूद कहता है जी कि हमें रिक्रूटमेंट में बहुत ज्यादा मसला था, और जब ये ड्रोन स्ट्राइक्स शुरू हो गई तो उसके बाद हमने एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे पास 150 बंदे ने हमें ज्वाइन किया। ये था इम्पैक्ट ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव था और जिसने बहुत ज्यादा हमें लॉसेस पहुंचाए। अच्छा, इसके अंदर मुशर्रफ दौर में 2008 तक तकरीबन 51 ड्रोन स्ट्राइक्स थी, लेकिन जो जरदारी का दौर था उसके अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स की इंटेंसिटी बढ़ गई, और ये तकरीबन इसका ग्राफ बहुत ऊपर चला गया। मोर देन 290 ड्रोन स्ट्राइक्स जो थी दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग ओबामा टेन्योर, और उसके ओबामा के बाद पाकिस्तान में जो था वो जरदारी का टेन्योर था। अच्छा, ये ग्राफ क्यों बढ़ गया, या ड्रोन स्ट्राइक्स व्हाई इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द मुशर्रफ या ओबामा टेन्योर? उसकी सिंपल रीजन थी कि जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी, इन्होंने अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स, इन्होंने अमेरिका को, जो इनका सीआईए का हेडक्वार्टर था लैंगले में, तो वहां पे इनको अमेरिका को अलाउ किया और उनको वहां पे कहा कि इफ यू गेट योर टारगेट्स नो प्रॉब्लम, हम अपनी पार्लियामेंट में रोला शोला डालेंगे, शोर मचाएंगे, लेकिन सोवरेनिटी का रोला करेंगे, लेकिन आपको जब तक टारगेट्स मिलते हैं आप करते रहो ड्रोन स्ट्राइक्स। और उन्होंने बिल्कुल अंधाधुंध इनको ड्रोन स्ट्राइक्स की इजाजत दे दी जरदारी के दौर में, जिसकी वजह से जो ड्रोन स्ट्राइक्स का जो ग्राफ था वो बहुत ऊपर चला गया।
पहले अमेरिका हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके ड्रोन स्ट्राइक्स करता था, बाद में उन्होंने अपना एक जो था नेटवर्क वहां पे बना लिया। अकॉर्डिंग टू बॉब वुडवुड, एक किताब उसने लिखी बॉब वुडवुड ने, ओबामा's वॉर। ओबामा's वॉर्स के अंदर वो लिखता है कि जी 2005 के बाद अमेरिका एस्टैब्लिश देयर ओन स्पाइंग नेटवर्क इन पाकिस्तानी ट्राइबल एरियाज, जिसके अंदर जो रेफ्यूजीज थे ना, उनको वहां पे तकरीबन 2-3 हजार रेफ्यूजीज को उन्होंने हायर करके, उनको ट्रेन करके ट्राइबल एरियाज के अंदर छोड़ दिया फॉर स्पाइंग एंड फॉर मार्किंग, और ताकि वो जो एक एरिया में आके रहना लग जाए और वो आपको जो इतने भी टॉप के कमांडर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो करते क्या थे कि या तो चिप ड्रॉप करते थे उसके घर के बाहर, या फिर मार्किंग कर देते थे, लेजर मार्किंग कर देते थे उस घर की, तो उनकी जो मिसाइल्स है वो एक्यूरेटली हिट करते थे उस कंपाउंड को। सिंपल सी टेक्निक है ना, आप एक नई जगह पे जाकर रहना शुरू कर दे तो एक महीने में आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे रहता है। तो यही टेक्निक उन्होंने यूज की और उन्होंने अपना एक स्पाइंग नेटवर्क वहां पे खड़ा किया, और उस स्पाइंग नेटवर्क की वजह से उन्होंने बहुत सारी अथॉरिटेरियन ड्रोन स्ट्राइक्स की जो कि पाकिस्तान की मर्जी के बगैर थी, लेकिन उन्होंने की। और कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स वो हमारी मर्जी के मुताबिक करते थे। इन ड्रोन स्ट्राइक्स में नो डाउट बहुत सारे टॉप के अलकायदा के और आईएमयू के और टीटीपी के लीडर्स मरे। फॉर एग्जांपल बैतुल्ला मसूद, he was killed in drone strike. Hakeem Ullah Masood was killed in drone strike. IMU का बंदा था ताहिर अल-दशेब, he was killed in drone strike. तो ये बड़े टॉप, इलियास कश्मीरी was also killed in a drone strike. ये सारे टॉप के कमांडर्स थे। और याहिया अबू लीबी जो था, he was also killed in अल-कायदा का, he was also killed in a drone strike. लेकिन एट द सेम टाइम जो सिविलियन काउंट था वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे लॉस हुए। जो कि अगला जो दौर है, मुशर्रफ का जो दौर है, उसके बाद का जो दौर है वो है पीपीपी का दौर। पाकिस्तान में जरदारी और वहां पे जो हुकूमत थी अमेरिका में ओबामा की, यहाँ पे इनको जो सबसे पहली चीज हुई वो थी इकोनॉमिक एड मिली। इकोनॉमिक एड इनको मिली बहुत बड़े $1.5 बिलियन, तकरीबन 5 इयर्स के टेन्योर पे, और इसको कैरी लुगर बिल भी कहा जाता है इसके मुताबिक। अच्छा, ये जो एड थी दैट वाज बेसिकली सिविलियन एड, और इन्होंने अमेरिकन ने स्ट्रिक्टली कहा कि ये एड मिलिट्री पर्पज के लिए यूज नहीं होगी। तो बेसिकली इट वाज अ ब्राइब टू द जरदारी गवर्नमेंट ताकि उनसे ये अपने काम ले सकें। इस एड का हमें नुकसान क्या हुआ बाद में मैं बताता हूँ आपको। हुसैन हक्कानी वाज द एम्बेसडर इन अमेरिका एट दैट टाइम, और 3000 वीजे इन्होंने इशू किए विदाउट आईएसआई की स्क्रूटनी के, जिसकी वजह से उसके जरिए बहुत सारे जो स्पाइस थे दे केम टू पाकिस्तान, और उन स्पाइस ने पाकिस्तान में आके ठीक ठाक हमारी तबाही मचाई। और दूसरे नंबर पे जो ड्रोन स्ट्राइक्स की जो जो ज्यादा बढ़ी उसी दौर में बढ़ी, तो ये जो स्पाइंग नेटवर्क क्रिएट किया गया था उन स्पाइस के जरिए से, उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस दौर में हुई वो थी लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस, जो कि बड़े लेवल पे मिलिट्री ऑपरेशंस थे, वो हुए 2009 के बाद। स्पेशली आपने देखा ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन राह निजात स्वात में, साउथ वजीरिस्तान में, फिर उसके बाद कुरम एजेंसी में आपको पता सेक्टेरियन वायलेंस बहुत ज्यादा था, तो उसको मिटिगेट करने के लिए वहां पे ऑपरेशन कोहिर सफेद किया गया। और उसके बाद ऑपरेशन जो थे बहुत सारे और भी ऑपरेशन और अक्सई में भी हुए, एंड अल्टीमेटली ऑपरेशन ज़रब अज़ब was launched on North Waziristan agency. Now this was the only agency which was not touched before. और 2010 तक हमने तमाम एजेंसीज भी ऑपरेशन किए, लेकिन 2010 में कोर कमांडर्स ने कहा कि यहाँ पे भी ऑपरेशन करें, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस इन्होंने नहीं किए ऑपरेशन। और उसका नुकसान हमें ये हुआ कि 2010 से लेके 2015 तक 35,000 पाकिस्तानीज दे लॉस्ट देयर लाइव्स। अच्छा, क्यों नहीं किए ऑपरेशन? आपके माइंड में आ रहा होगा कि 10 के बाद करने भी चाहिए थे। क्या रीजन थी जो इन्होंने नहीं किए? जो क्यानी था उसने क्यों नहीं ऑपरेशंस किए? तो उसकी जो प्राइमरी रीजन थी वो ये थी कि नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी में मिरन शाह के अंदर आपके पाकिस्तान के जो एलाइज थे, हकानी नेटवर्क और अफगान तालिबान, ये लोग छुपे हुए थे और इन्होंने यहाँ पे शेल्टर लिया हुआ था, इनकी लीडरशिप थी यहाँ पे। तो इनके ऊपर अगर ऑपरेशन करते तो लाजमी बात है इनको नुकसान पहुंचता, और अगर इनको नुकसान पहुंचता तो आपके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता इन अफगानिस्तान। तो आपने 2010 से लेकर 15 तक वेट किया। 15 में जब अमेरिका डिसाइडेड टू लीव अफगानिस्तान और अमेरिका ने कोई 68,000 अपनी ट्रूप्स जो थे उनको पुल आउट किया,
और सिर्फ 14,500 के करीब 800 के करीब फौज वहां पे छोड़ी, तो दैट वाज द मोमेंट तब पाकिस्तान ने कहा ठीक है अब हम भी ऑपरेशन करते हैं इसके ऊपर नॉर्थ वजीरिस्तान। एंड पाकिस्तान देन कैरिड आउट ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब, और रीजन उन्होंने बता दी कि जी एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था या एपीएस पे अटैक था या जो भी था, व्हाट्सएवर वाज द रीजन। लेकिन अल्टीमेटली जो प्राइमरी रीजन थी वो यही थी कि अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिका जा चुका था, और यहाँ से हकानीज को और बाकी जो अफगान तालिबान थे जो आपके दोस्त थे, आपने उनको खामोशी से कह दिया कि भाई अब आप चले जाएं वापस, और अब हम नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जो दत्ता खेल है या मिरली है, जहां पे टीटीपी, आईएमयू, ईटीआईएम, पंजाबी तालिबान, जितने भी टेररिस्ट जो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे शेल्टर लेके बैठे हुए हैं, उनको उनका सफाया करना है अब। एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान डिड दैट। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन, और इसके अंदर उन्होंने तमाम मिलिटेंट ग्रुप्स को टारगेट किया, और चाहे वो हाफिज गुल बहादुर था जिसके साथ पीस डील थी, या फिर मीर अली के अंदर टीटीपी वगैरह या बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स थे, या फिर मिरन शाह के अंदर कुछ अलकायदा के या बाकी लोग थे, उन सबको वहां पे सफाया किया गया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज वहां पे हुई वो ये थी कि जो फैक्ट्रीज थी वहां पे, बॉम्ब फैक्ट्रीज, उनको वहां पे डिस्ट्रॉय किया गया, उनका सफाया किया गया। वो बॉम्ब फैक्ट्रीज बेसिकली जो बॉम्ब बना रही थी, दीज आईडीज, आईडीज क्या होता है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को कहते हैं आईडीज। These IDs were used, they were, you can say they were also used by Al Qaeda, they were used by TTP, they were used by Afghan Taliban, and they were used by local। हो ये रहा था कि इसका नुकसान अमेरिका को भी पहुंच रहा था, अफगानिस्तान को भी पहुंच रहा था, और पाकिस्तान को भी पहुंच रहा था, क्योंकि बायर्स सबके थे। और एक टेरर इकोनॉमी के तौर पे मीरन शाह के अंदर और मीर अली के अंदर दीज मार्केट्स वर देयर। इनको वहां पे डिस्ट्रॉय किया गया, इनको तबाह किया गया, खत्म किया गया, और tons, hundreds of tons of explosive material was recovered and destroyed। thousands of militants were eliminated, और कुछ भाग के होस्ट प्रोविंस जो के लगता है टच करता है नॉर्थ वजीरिस्तान को, वहां पे चले गए, और कुछ अर्बन सेंटर्स में छुप गए आके पाकिस्तान के। सो इट वाज अ ह्यूज मिलिट्री ऑपरेशन। अच्छा, इसके साथ ही पिछले मिलिट्री ऑपरेशन में और इस मिलिट्री ऑपरेशन में फर्क क्या था? पिछले मिलिट्री ऑपरेशन में फर्क ये था कि ये पिछले मिलिट्री ऑपरेशन जब भी किए जाते थे तो तिरा वैली जो कि खैबर एजेंसी में है उसको टच नहीं किया जाता था, और वहां पे ऑपरेशन नहीं किया जाता था। और होता ये था कि मिलिटेंट्स जब इन यहाँ पे ऑपरेशन होते थे तो मिलिटेंट्स मूव करके दे यूज टू टेक रेफ्यूज इन तिरा वैली। Now, Tira Valley is very important. As a student of Pakistan studies, you must understand the significance of Tira Valley. Tira Valley shares border with Nangarhar province of Afghanistan, and there were more than 2,500, Al Qaeda, IMU, ETIM, and other sorts of militants who were taking refuge in Tira Valley after Operation Zarb-e-Azab. तो वहां पे ऑपरेशन बहुत जरूरी था। तो पाकिस्तान ने ये किया कि जैसे